Hello friend, good evening. Welcome back to my channel. I am here again with the same topic, the general prologue of the Canterbury Tale. Today we will discuss about the general prologue of the Canterbury Tale with the topic night. In previous video we discussed about the biography of Chaucer and some historical, political, economic background of the Chaucer, main events, Hundred Year War, Black Death, Peasant Revolts, Lollard Movement, and many topics. In this video, we will again discuss the Canterbury Tale. A knight there was, and that a worthy man, that fro the time that he first began. This is the original text of the Canterbury Tale. Chaucer want to say that he want to begin with the knight. There was a knight, a most distinguished man, who from the day on which he first began to ride out had followed chivalry, truth, honor, generousness and courtesy. He had done nobly in his sovereign war, and ridden into battle now man more, as well in Christian as in heathen places, and ever honoured for his noble graces. यहाँ पर चौसर नाइट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनकी नोबिलिटी, ट्रूथनेस, ऑनर, फ्रीडम, कर्टसी, सिवैलरी, वर्दीनेस, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी एंड ए नोबल पर्सन. When we took Alexandria, he was there. He often sat at a table in the chair of honor above all notion. When in Prussia, in Lithuania he had ridden, and Russia. No Christian man so often of his rank. When in Granada, Algeciras sank under assault, he had been there, and in North Africa, rending Benamarine. In Anatolia he had been as well, and fought when Ayas and Italia fell. For all along the Mediterranean coast he had embarked with many a noble host. In this slide, Chaucer is described about the many battles fought by knight and his enemy. नाइट कई सारे डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं बैटल करने के लिए और अपनी जीत हासिल करके आते हैं, वहां पे अपना परचम लहरा कर आते हैं. उनमें से कुछ नाम है अलेक्जेंड्रिया, लिथुनिया, प्रूसिया, रूस, अलेक्जेंड्रिया, केप्रूस, रूस, ग्रेनेडे, बेलमेरी, सेटाली, अल्जेजिर, लियास, नेक्स्ट इन दिस स्लाइड वो बताते हैं ये जितने भी युद्ध लड़े, कई तो उसमें से मॉर्टल युद्ध भी थे और उस मॉर्टल युद्ध में भी इन्होंने जीत हासिल की है. In 15 mortal battles he had been, and jousted for our faith at Tramcene, thrice in the list, and always killed his man. This same distinguished knight had laid the van, once with the Bay of Ballad doing work from him against another heathen Turk. He was of sovereign value in all eyes. सभी के आंखों का तारा हो गए थे वो. सभी लोग उनको जिस विश्वास के साथ देखते थे,
वो सभी के विश्वास में खरा भी उतरते थे। And thou so much distinguished he was wise, and in his bearing modest as a maid. He never yet a beauteous thing had shed in all his life to any, come what might. He was a true, a perfect gentle knight. चौसर के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान के साथ साथ वो अपने शरीर में विनम्रता को धारण किए थे। जब कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीर प्राप्त कर लेता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो कभी हारता नहीं है, हार कभी नहीं मानता, हमेशा जीत पर जीत उसको मिलते जाता है, तो वो बिल्कुल घमंड से चूर हो जाता है, उनमें घमंडता आ जाती है। लेकिन नाइट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी विनम्रता को धारण किए हुए थे। 15 मॉर्टल बैटल को जीतने के बावजूद उन्होंने अब तक अपने अंदर विनम्रता को धारण किए रखा, इसलिए चौसर उन्हें अ ट्रू परफेक्ट जेंटल नाइट कहते हैं। आफ्टर दिस चौसर tried to explain us his dress and his fine horse. ये इतने ज़्यादा महान, इतने वीर, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहने होते हैं, और इनके ड्रेस में स्टेन लगा होता है और काफ़ी सिकुड़ा हुआ होता है ड्रेस, क्योंकि ये जस्ट इनका काम होता है बैटल में, वार में जीतना, हारना, लड़ना, फाइट करना, और वो हमेशा फाइट ही करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब पिलग्रिम्स जाने का बात होता है तो सभी लोग जब जा रहे होते हैं, तो ये इतने ज़्यादा अपने ड्यूटीफुल इंसान तो ये हैं, ये इतने ज़्यादा अपने कामों के प्रति कृतज्ञ हैं कि अपने युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के बाद, वहाँ से जीत हासिल करने के बाद, वो उसी ड्रेस में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वो ड्रेस चेंज भी नहीं करते हैं। युद्ध में जो ड्रेस पहने होते हैं, आयरन का पूरा ड्रेस होता है उनका, वो उसी ड्रेस में चल पड़ते हैं, और उनके उस आयरन के ड्रेस में जंग लग जाता है, बहुत सिकुड़ जाता है, वो ड्रेस पुराना सा लगने लगता है। लेकिन वो इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हुए वो बिल्कुल बिना परवाह किए चल पड़ते हैं तीर्थस्थल की ओर। स्पीकिंग ऑन हिज इक्विपमेंट ही पोजेस्ड fine horse, but he was not gaily dressed. He wore a fustian tunic stained and dark with smudges where his armor had left mark. Just home from service, he had joined our rank to do his pilgrimage and render thanks. Knight's character. Knights के कैरेक्टर के बारे में चौसर क्या क्या बताए हैं? वाइज मैन, एक परफेक्ट ट्रूथ पर्सनालिटी, वर्दी, नोबल, डिस्टिंग्यूज्ड, ट्रूथफुलनेस, ऑनरेबल। चौसर तो यही बताया ना नाइट के बारे में। नोबल, जेंटलमैन, कर्टसी, सिवैलरिक, ट्रूथ, वाइज, जेनरस, ऑनरेबल, डिस्टिंग्यूज्ड एंड मोडेस्ट, ये उनकी पर्सनालिटी थी। और कई सारे ये वार जीते हैं। अलेक्जेंड्रिया, प्रूसिया, ग्रेनाडा, अल्जेसियर्स, लिथुनिया, रूसिया, नॉर्थ अफ्रीका, बेनामेरिन, एनाटोलिया, अयास, अटालिया, मेडिटेरेनियन कोस्ट, 15 मॉर्टल बैटल्स, त्रैमिशेंस, तुर्क, बे ऑफ बैलेट, एटसेट्रा। एंड लास्ट में चौसर उनके बारे में कहते हैं, ही वॉज ट्रू अ परफेक्ट जेंटल नाइट। हिज ड्रेस, this was his dress, iron dress, and this was his horse. Fine horse, not galley dress, rust in dress, smudge and mark. उनके ड्रेस में रस्ट, स्मज एंड मार्क होता है। चौसर नाइट के कैरेक्टर को बोलने के बाद वो नाइट का स्टोरी बताते हैं। हालांकि द कैंटरबरी टेल के प्रोलॉग में ओनली 29 पिलग्रिम्स हैं, उनमें से 24 पिलग्रिम्स का सिर्फ प्रोलॉग दिया है, सिर्फ उनके कैरेक्टर के बारे में दिया, उनके स्टोरी को नहीं बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए
नाइट के कैरेक्टर के साथ उनकी टेल को भी ऐड करी हूँ स्लाइड में, साथ ही साइड बाय साइड हम लोग दोनों करते चलेंगे, क्योंकि इससे वैसे ज़्यादा वेग हो जाएगा। अगर मैं पहले कैरेक्टर का डिस्क्राइब करूँ फिर बाद में एक एक करके कहानी को लाऊंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को भी थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए नाइट के कैरेक्टर के साथ उसके टेल को मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में जब स्क्वायर का कैरेक्टर लाऊंगी तो स्क्वायर के साथ उसका टेल को ऐड कर दूंगी। तीर्थ स्थल में जाते वक्त शर्त यही लगाया गया था, होस्ट जो जज था वो बोला था जो भी जा रहा है इस पिलग्रिमेज में प्रत्येक मेंबर को 2-2 स्टोरी सुनाना है, 2 जाते वक्त और 2 आते वक्त, यानी 4 स्टोरी पर पर्सन, यही शर्त लगी थी। तो नाइट का नंबर सबसे पहले आता है और बोला जाता है ठीक है आपका रैंक सबसे ऊंचा है, जितने भी यहाँ पे सब में से आप सबसे महान सबसे ग्रेट हो, तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत आपसे ही हो। नाइट अपनी कहानी को शुरू करता है। नाइट का कहानी बिल्कुल नाइट जैसा ही था, युद्ध करने वाला, एक राज दरबार से जुड़ा हुआ वो एक कहानी को सुनाता है। उसकी कहानी में कैरेक्टर जो थे यहाँ पे मेंशन है, थेशियस, ही वॉज अ किंग, हिपोलिटा हिज वाइफ, पैलामन and Arcite are 2 characters, both were cousin brother. Widow woman and Emily, Hippolyta's sister. कहानी इसी 5-6 कैरेक्टर के बेस पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। नाइट्स टेल, नाइट्स कहानी को स्टार्ट करता है, तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। बेस्ड ऑन बोकासियोस ट्रेजिडा, नाइट्स का टेल बोकासियोस के ट्रेजिडा के टेल पर आधारित है। एंड 2250 लाइन इन दिस टेल। Theseus was a king of Athens who controlled Amazon and married to Hippolyta. Theseus एथेंस का राजा था और वो अमेजन राज्य को अपने कब्जे में करके अमेजन की महारानी हिपोलिटा से शादी कर लेता है। इनकाउंटर्ड बाय विडो, शादी करके जब वो जा रहा होता है उसी समय कई सारी विधवा महिलाएं आकर उनको घेर लेती है और वो उनसे शिकायत करती है। किस बात की शिकायत? वो यह कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि थेशियस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा है, तो वो शायद हमारी मदद करे। मदद की गुहार करने के लिए वो थेशियस को घेर लेती है और उनकी मदद, वो किस बात की मदद मांगना चाह रही थी? वो मदद मांगना चाह रही थी कि उनके जो हस्बैंड हैं जो युद्ध में मारे गए थे, किनके द्वारा मारे गए थे? यहाँ पर एक दूसरे किंग आ जाते हैं कहानी में, किंग क्रियोन ऑफ थेब्स, जो थेब्स के राजा थे, उनका नाम क्रियोन था, उनके द्वारा मारे जाते हैं और वो मार कर उन लोगों का डेड बॉडी महिलाओं को देने से मना कर देता है। तो वो विडो थेशियस के पास जाकर ये गुहार लगाती है कि क्रियोन को से ये परमिशन लें या मनाएं कि वो उनके सारे हस्बैंड के डेड बॉडी को वापस करें। तो थेशियस उनका मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और क्रियोन को मार देता है, साथ ही थेब्स राज्य को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है और सारे डेड बॉडी को विडो को सौंप देता है। उसी समय अचानक क्या होता है? 2 of them in the pile of bodies were alive. जब वो डेड बॉडी को सौंप रहे होते हैं तो वो सारे डेड बॉडी में 2 ऐसे डेड बॉडी होते हैं जो सिर्फ इंजर्ड होते हैं, बट they were not died. One is Palamon and another is Arcite. They are cousin brother. Duke Theseus ordered to put them in prison. जब ड्यूक थेशियस देखते हैं कि ये दोनों मृत शरीर नहीं है, वो ऑर्डर दे देते हैं कि इन दोनों को जेल में डलवा दो। इन प्रिजन पैलामन सीज एमिली। पैलामन और आर्सिट जब जेल में चले जाते हैं तो इन लोगों का और भी मजा। पैलामन उस जेल से एमिली को देख लेता है। सी वॉज अ चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिस्टर ऑफ हिपोलिटा एंड फॉल इन लव। आर्सिट ऑल्सो फॉल इन लव विद हर।
पहले पैलामन देखता है एमिली को और वो प्यार में पड़ जाता है। देन आर्कसिट भी देखता है एमिली को और वो भी एमिली के प्यार में पड़ जाता है। ये हुआ पिक्चर। जेल में पैलामन और आर्कसिट खड़ा है। एमिली गार्डन में फ्लावर कलेक्ट करने आती है। उसी टाइम उन पैलामन का नज़र एमिली पे पड़ता है और उसको प्यार हो जाता है। फिर आर्कसिट आता है बाहर देखने के लिए, वो भी देखता है और वो भी उस फॉल इन लव में पड़ जाता है। किंग banishes both of them, both escape from prison, met to Emily। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो एमिली से मिला जाए और दोनों जेल से भाग जाते हैं। 9 तो 11 हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त किंग को ये बात पता चल जाता है। किंग थेशियस, यहाँ पर किंग जो है वो थेशियस है। थेशियस को ये बात पता चल जाता है कि दोनों जेल से भाग गए हैं और वो उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर बैनिश कर देता है। जब उन लोगों को ये पता चलता है, जब किंग को ये पता चलता है कि एमिली जो है, जो वो दोनों प्रिजनर हैं, वो एमिली से प्यार करते, तो वो डिसाइड करते कि इन लोगों को मार दिया जाए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कारावास में रहकर हमारी जो रानी है उनकी बहन पर नज़र डालने की, इसलिए ऑर्डर दे देते हैं कि किल देम। बट हिप्पोलिटा रिक्वेस्ट हिम टू नॉट डू सो। ही होल्ड अ डुएल टू डिसाइड हू टेक्स हर। लेकिन हिप्पोलिटा किसी तरह मना लेती है कि ऐसा ना करें और इसके बदले वो एक डुएल रख देते हैं दोनों के बीच। और ये डुएल क्या होता है, एक शर्त होता है जो नाइट, जो दोनों पैलामन और आर्कसिट दोनों को 100 नाइट दिए जाते हैं और एक युद्ध, दोनों के बीच एक युद्ध करवा दिया जाता है कि इस युद्ध में जो जीतेगा उसी को एमिली का हाथ दिया जाएगा। दोनों भाई रेडी हो जाते हैं। One night before the duel of all three prays, उस ड्यूल के एक रात पहले तीनों प्रार्थना करने लगते हैं। पैलामन प्रेज टू वेनस, एमिली प्रेज डायना, आर्कसिट प्रेज मार्स। तीनों अपने अपने जिनको जो चाहिए था अपने अपने गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं। पैलामन तो किसी भी कीमत पे प्यार चाहता था, इसलिए वो वेनस को की पूजा करता है। एमिली को चस्टिटी चाहिए था तो वो डायना की पूजा करती है। और आर्कसिट किसी भी हाल में युद्ध जीतना चाहता था, इसलिए वो गॉड ऑफ वॉर मार्स की पूजा करता है। पूरे तन मन से ध्यान लगाता है कि वो, चूँकि शर्त यही था कि जो जीतेगा उसे ही एमिली के हाथ दिया जाएगा। तो आर्कसिट पूरे तन्मयता से मार्स की पूजा करता है, मार्स से प्रार्थना करता है, मैं ही जीतूं, मुझे ही जीतना है, मुझे हर हाल में, किसी भी हाल में मुझे जीतना है युद्ध। यहाँ पर तीनों प्रे करते हैं, तीनों के सामने गॉड है, वो अपने अपने गॉड को प्रे कर रहे हैं। और उसी रात सैटर्न एक भविष्यवाणी करते हैं जिनको गॉड ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। वो कहते हैं सभी को सब कुछ मिलेगा, जो मांग रहे हो सबको। पैलामन विल विन्स हिज लव एंड आर्कसिट विल विन इन फाइट एंड एमिली रिजॉयसेस। जिन्होंने जो चीज़ मांगे है सभी की मुराद पूरी हो गई कहकर तथास्तु कहकर वो गायब हो जाते हैं। आर्कसिट विन इन वॉर, और युद्ध में सही में आर्कसिट जीत जाता है। आर्कसिट गॉड ऑफ वॉर का प्रे भी किया था और सही में वो जीत भी जाता है, यानी सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। बट एज ही वॉकिंग टुवर्ड्स एमिली, लेकिन जैसे ही वो घोड़े पर सवार होकर घोड़े से चल रहा था एमिली का हाथ लेने के लिए, एमिली की ओर बढ़ रहा था, उसी समय सडनली अर्थ फट जाता है और वो गिर जाता है। धड़ाम सा गिरता है, इतने जोर से गिरता है कि उसका छाती फट जाता है और वो वहीं पर उसका मौत हो जाता है। वो युद्ध तो जीत गया लेकिन वो एमिली का प्यार नहीं पा सका, क्योंकि वो कभी भी प्यार का प्रार्थना किया ही नहीं था। वो चाहता था कि हमको बस युद्ध जीतना है और युद्ध वो जीत जाता है। एट लास्ट पैलामन टेक एमिलीज हैंड, और अंत में पैलामन को एमिली का हाथ मिल जाता है, क्योंकि पैलामन को किसी भी कीमत में अपना प्यार चाहिए होता है। और पहली बार पैलामन ही एमिली को भी देखा था। और जब किंग थेशियस और हिप्पोलिटा दोनों एमिली का हाथ पैलामन के हाथ में दे देते हैं और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about Squire and his tale, and
आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। बाय बाय।